In every corner of India, far from the spotlight, live the real architects of sporting excellence. Coaches, mentors, teachers, and trailblazers who give their all without ever seeking fame, tirelessly dedicating themselves to build the very foundation on which champions now rise. These are the silent legends of Indian sport. Steadfast, selfless, strong. Today's young athletes may not know their names, just as many of these veterans remain unaware of the incredible new energy pulsing through Indian sports. Silent Legends is a heartfelt initiative to bridge the emotional and generational gap through meaningful conversations that honor the past and inspire the future. At Sportsmongers, we believe that behind every victory stands a forgotten hand that once lit the way and is still doing it now. Watch, listen, learn. It's time to reconnect with gratitude, with vision, and with those who made it all possible. Meet Anu Kumar, a name that may not echo in headlines, but whose dedication has quietly shaped Indian athletics. An international long jumper from Meerut, Uttar Pradesh, Anu Kumar soared to a personal best of 7.63 meters, representing India with pride at Indian Railways and World Railway Athletics. Today, he serves as the chairman of the technical committee of the Uttar Pradesh Athletic Association, where his eye for detail and commitment to fairness guide the next generation of athletes and officials. Anu Kumar is a pioneer in bringing technology to athletics officiating in India. He has been recognized as a bronze level referee by World Athletics, including being the first to computerize results in competitions. From his days on the track to his current role behind the scenes, Anu Kumar is one of those silent legends, the kind who ensure that talent is nurtured, rules are upheld, and dreams are protected. In this candid conversation, he reflects on his sporting journey, the lessons he's learned, and his mission to uplift athletics at the grassroots level. Let's meet the man who believes the measure of a true athlete isn't just in meters jump, but in the integrity carried long after the jump. शुरुआती दौर में एक जिद सी हो गई थी और उस जिद के कारण मैं एथलेटिक्स में आ गया, वरना मेरा खेल तो मैं वॉलीबॉल खेला करता था और मैं पहला आदमी था जिसने हिंदुस्तान में एथलेटिक्स को कंप्यूटराइज्ड किया। यानी कि अगर कोई रेफरी है या वो जज काम कर रहा है, तो अगर उसके पास नॉलेज होगी, उसके पास परफेक्शन होगा, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी को इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा मैं कारण समझता हूँ कि एथलेटिक्स जो कि ग्रामीण अंचल का खेल है, ये जमीन से जुड़ा हुआ खेल है और सब खेलों का राजा है ना। तो वहाँ पर दर्शकों की कमी जो है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने में थोड़ा सा जो है पीछे है। अगर हमारे पास दर्शक होंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर और बढ़िया कर सकते हैं। उनको जब मदद मिलती है तो उनको एक सहारा नजर आता है, बोले यही वो आदमी है जिससे हम अपने खेल जीवन में फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो फ़ायदा जानकारी है, सबसे बड़ी चीज़ है जानकारी। पर अच्छा लगता है कि हम अपने खिलाड़ियों को, अपने आने वाले कल को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है, ये खिलाड़ी को उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, उसको सहायता देने में बड़ा योगदान दे रही है। Could you please introduce yourself? मेरा नाम अनु कुमार है और मैं मेरठ से संबंधित हूँ। लॉन्ग जंप का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ और वर्तमान में मैं चेयरमैन टेक्निकल कमेटी उत्तर प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन काम कर रहा हूँ।
मैंने लॉन्ग जंप में मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस 7.63 मीटर रही है। तो इंडियन रेलवे के लिए भी मैंने रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड रेलवे एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये अचीवमेंट्स हैं। You once competed on the field. What motivated you to stay connected with athletics as a technical official? खेल जीवन एथलेटिक्स में इसलिए प्रारंभ हुआ, कुछ शुरुआती दौर में एक जिद सी हो गई थी और उस जिद के कारण मैं एथलेटिक्स में आ गया। वरना मेरा खेल तो मैं वॉलीबॉल खेला करता था, और एक जिद हुई और एक अच्छा गुरु BK वाजपेयी जी मिले, तो उन्होंने एथलेटिक्स में मेरे को ले आए। और 2003 तक जब तक स्पोर्ट्स करते रहे, उसके बाद में मेरठ में इंटर जोन एथलेटिक चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी 2003 में। तो वहाँ पर विचार आया कि मेरे ग्राउंड पर प्रतियोगिता हो रही है तो मुझे भी काम करना चाहिए। और जब से ये टेक्निकल ऑफिशियल के काम में मैं आया, और मैं पहला आदमी था जिसने हिंदुस्तान में एथलेटिक्स को कंप्यूटराइज्ड किया, और उसका फल जो है आज आप देख रहे हैं कि आज नए नए लोग भी जो है उसी पद्धति को लागू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। How do you see your current role in shaping or supporting young athletes during championships? मेरा सबसे बड़ा समर्थन ये है कि क्योंकि ऑफिशिएटिंग, यानी कि अगर कोई रेफरी है या वो जज काम कर रहा है, तो अगर उसके पास नॉलेज होगी, उसके पास परफेक्शन होगा, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी को इसका बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ में किसी भी प्रकार की कोई गलत निर्णय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना तकनीकी ज्ञान ऑफिशियल से रिलेटेड ये बढ़ाएं, और मेरा फोकस सिर्फ इसी वजह से रहता है कि खिलाड़ी को किसी भी वजह से कोई भी अपनी परफॉर्मेंस देने में दिक्कत ना हो। Do today's young athletes recognize and engage with former athletes like yourself during events? हाँ, अक्सर जो खिलाड़ी बहुत शुरू के जो स्टार्टिंग लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं वो तो शायद नहीं जान पाते हैं, परंतु धीरे धीरे जब उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है या किसी तरह की जानकारी चाहिए होती है, तो वो धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देते हैं, और उनको जब मदद मिलती है तो उनको एक सहारा नज़र आता है। बोले यही वो आदमी है जिससे हम अपने खेल जीवन में फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो फ़ायदा जानकारी है। सबसे बड़ी चीज़ है जानकारी। आज दिन में कम से कम आप ये समझिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और जाने कहाँ से खिलाड़ी 150-200 खिलाड़ी प्रतिदिन फ़ोन पे किसी न किसी प्रतियोगिता की जानकारी लेते हैं, कोई और जानकारी लेते हैं, कहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कहाँ कोचिंग ले सकते हैं। तो ये सब जो है एक हालांकि बड़ी व्यस्तता हो जाती है, पर अच्छा लगता है कि हम अपने खिलाड़ियों को अपने आने वाले कल को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। What changes have you observed in Indian athletics since your time as a competitor? टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस, बहुत टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। आज सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो क्या है कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है, ये खिलाड़ी को उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, उसको सहायता देने में बड़ा योगदान दे रही है। क्योंकि एक समय था कि खिलाड़ी दौड़ा, उसको पता ही नहीं वो कैसे दौड़ा। आज वो बार बार अपनी वीडियोस को देख सकता है। तो किसी भी कंपटीशन की लाइव स्ट्रीमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और उससे वो खिलाड़ी अपनी गलतियों को पकड़ लेता है। इसके अलावा जो जितने भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे फ़ोटो फिनिश टाइमिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरर, तो ये वो दो टेक्नोलॉजी हैं जिनसे खिलाड़ी को एक आत्मविश्वास होता है कि मेरे साथ फिनिश लाइन पर, मेरे साथ फील्ड में, मेजरमेंट में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो रही है, और वो कॉन्फिडेंट होकर अपनी परफॉर्मेंस को देता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है इस समय टेक्नोलॉजी की वजह से खिलाड़ी को मिल पा रहा है। In your view, what is still lacking
in terms of nurturing grassroots or junior talent in India? इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश देखिए, आज क्रिकेट इतना ऊपर चढ़ गया है क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, वहाँ पर टूर्नामेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, ऑडियंस। जब एक खिलाड़ी कोई परफॉर्मेंस देता है, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसके अंदर एनर्जी लाने के लिए दर्शकों की बहुत ज़रूरत होती है। इस वजह ये एक सबसे बड़ा मैं कारण समझता हूँ कि एथलेटिक्स जो कि ग्रामीण अंचल का खेल है, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ खेल है और सब खेलों का राजा है ना। तो वहाँ पर दर्शकों की कमी जो है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने में थोड़ा सा जो है पीछे है। अगर हमारे पास दर्शक होंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर और बढ़िया कर सकते हैं। Can you share a moment from your past that continues to inspire you in your role as an official or mentor? आ, 1989 की बात है। सबसे पहला कंपटीशन मैंने यूनिवर्सिटी मीट खेली थी लॉन्ग जंप में, और उस समय मैंने जंप करी थी 6.03 मीटर, और वो 6.03 मीटर एक दूसरे एथलीट ने भी करी थी। तो मुझे पता चला कि मैं थर्ड हूँ, और जब रिजल्ट बना तो पता चला कि मैं फोर्थ हो गया। मुझे पता नहीं था कि टाई को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस समय मुझे ये बताया गया कि तुमने जो सेकंड बेस्ट जंप थी वो 5.75 मीटर थी और दूसरे खिलाड़ी की 5.78 मीटर थी। पर एक जिद हो गई, जैसा सभी लोग कहते हैं, हारने के बाद में अगली बार बताऊंगा। तो वो जो अगली बार बताने वाली जो घटना थी वो मेरे को एथलेटिक्स में ले आई, और मैंने आके फिर प्रैक्टिस शुरू करी। प्रैक्टिस तो मैं एथलेटिक्स जानता ही नहीं था होती क्या है, बस मुझे ये पता था मुझे कूदना है ना। कूदते कूदते वो वाजपेयी सर मिल गए। उन्होंने कहा यार ये लड़का तो रोज आके कूदता है। उन्होंने मुझे एथलेटिक्स की ABCD सिखाई, दौड़ते कैसे हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, वो सब बताया। तो वो 6 महीने के बाद में मैंने 7.03 मीटर जंप करी, 1 मीटर आ गया। और उस समय हिंदुस्तान में 7 मीटर के जंपर 4-5 ही होते थे। तो मेरा जीवन बदल दिया उस जिद ने, जो कि सही हुआ था, पर मुझे लगा मेरे साथ गलत हुआ और मेरा पूरा जीवन बदल गया। दूसरा, जब ऑफिशिएटिंग के फील्ड में आया, मेरे ज़िले में प्रतियोगिता हो रही थी, मेरे शहर में प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हो रही थी, और मैं इसलिए चला गया कि यार अब मेरे ग्राउंड पर हो रही है तो मुझे मदद करनी चाहिए। और वो मदद जो है वो ऐसा बैठा मैं सिस्टम के ऊपर कि आज तक नहीं उठ पाया हूँ। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं बिल्कुल लिंक्ड है। Do you feel that former athletes who now serve in technical or support roles receive enough recognition? आज कोई भी एक्टिविटी सब लोग देख पा रहे हैं अपने घर में मोबाइल के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी का ही प्लस पॉइंट है, वरना और इसका एक एडवांटेज और भी है कि पहले जिस प्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम जानकारी ले पाते थे, अभी वीडियोस के माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, है ना, ये सब बड़ा एडवांटेज मिल रहा है खिलाड़ी को। Those who are running on the track today may become mentors or technical officials in the future. What message would you like to give them? जितनी ईमानदारी के साथ में आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है, ये आपकी भी ड्यूटी बनती है। खिलाड़ी की हमेशा ड्यूटी बनती है कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए और परिवार को प्रोटेक्ट करे। तो एथलेटिक्स भी एक खेल, एक हमारा परिवार है। तो आप लोग नहीं आएंगे तो फिर कहाँ से लोग आएंगे? एक समय आएगा कि सब खत्म हो जाएगा। क्रिकेट में देखिए आप कि वहाँ पर सुनील गावस्कर जी आज भी कमेंट्री कर रहे हैं, नवजोत सिद्धू कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। लोग राहुल द्रविड़ कोच बन गए, है ना, गौतम गंभीर कोच बन गए। तो एथलेटिक्स में क्या है? एथलेटिक्स में अगर सब लोग इस गेम से लेकर और घर बैठ जाएंगे तो एक दिन यहाँ सुनसान हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सभी जो आज खेल रहे हैं वो कल खिलाने के लिए ग्राउंड पर जरूर आए।
एज ए कोच आ सकते हो, एज ए मेंटर आ सकते हो, एज ए टेक्निकल ऑफिशियल आ सकते हो। कहीं ना कहीं आपको खेल से जुड़ा रहना चाहिए और ये एक आदमी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमेशा अपने आप को युवा फील करता है जब वो युवा खिलाड़ियों के बीच में रहता है। If this inspired you, like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.